Good morning, students. My name is Vipin Chaudhary, Assistant Professor and Head of a Department in Mechanical Engineering. So, today we discuss the subject Theory of Machine and named also as Kinematics of Machine and Dynamics of Machines. So, in Theory of Machines, before discuss this subject, we know the basics concepts of subject and the topics relate to the subject, theory of machine. So, what is theory of machine? Simple machine. Machine is what? That is to do some useful work or anything to do solve issue regarding your work with the little effort. Okay, so the subject theory of machine also named as dynamics of machine or kinematics of machine, right? We already discussed with you, right? So it deals generally with the relative motion as well as kinetic motion or dynamic in motions. So in previous semester you read applied mechanics and strength of material, right? So here you can easily read your forces, how to do this object is in motion. Now here we deals with the forces on the object, right? So I am sharing this slide with you. We discuss with the little bit about concept of chapter mechanisms with you, right? Wait for 1 minute. So I am sharing this slide. Theory of machines. So, students, firstly, we know about the subject code of our theory of machines, that is 5317, right? So, syllabus, what we discuss in this lecture, that is simple mechanism, links, kinematic pair, lower and higher pair, kinematic chains, right? And in the next lecture, we discuss inversions and different types of mechanism there. So in the syllabus, we see friction. You already read in third semester applied mechanics. Now here we have little bit derivations about that. Like in horizontal force is required to move a body on an inclined plane, upward and downward, both in direction. Frictional torques, both for square and V threads, like screw jacks and derivations इसकी जो है वो हम करेंगे, right? And different types of bearings, उसकी applications देखेंगे. Now again it's very important chapter, that is power transmission. सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर रहेगा ये, राइट? बेल्ट्स, रोप्स, ड्राइव्स डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव, टाइप्स ऑफ पुलीज, concept of velocity ratios, slip, creep, crowning of pulleys, flat belt, V belt, right? You see on the screen, we all here we discuss these things, right? गियर टर्मिनोलॉजी जो अपने ड्राइंग में ऑलरेडी बनाई हुई है, इसको दोबारा डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे कि व्हाट आर एक्चुअल टर्मिनोलॉजी, पार्ट्स, कंपाउंड गियर्स क्या, सिंपल गियर ट्रेन्स क्या होते हैं, स्पर गियर्स के हैं, राइट? सो व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स? नेक्स्ट स्लाइड वी सी, राइट? कि इस सब्जेक्ट को पढ़ के, इस टॉपिक्स को पढ़ के हम क्या रीड कर रहे हैं, क्या गेन कर रहे हैं? दैट इज नाउ वी नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म और इसकी इन्वर्जन ड्रॉ करेंगे, फोर्सेस के बारे में मेजर करेंगे, राइट? एंड इंक्लाइन प्लेन और कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक, राइट? पावर ट्रांसमिशन सोर्सेज, वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करेंगे, फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट का, राइट? गियर्स के बारे में जानेंगे. सो यहाँ तक हमारे जो है वो 3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, वो फर्स्ट एमएसटी तक. तो फर्दर वी कंटिन्यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर, राइट? सो टेक्स्ट बुक्स, यहाँ पे टेक्स्ट बुक अगर आप देखेंगे तो डी आर बनोकर इज द बेस्ट बुक फॉर यू, सत्य प्रकाशन, राइट? डिप्लोमा के लिए बेस्ट बुक है. अगर ज्यादा डीप में अपने नॉलेज में जाना है, यू कैन इजिली go for theory of machines of VP Singh, that is the best book, and BS Ubi, right? So discuss with the chapter subject theory of machine, right? What is the theory of machine? Simply in the starting of lecture I said to you that study of relative motion of various parts, जितने भी parts हैं उसके हम study करेंगे, forces का, ठीक है? और क्या चीज? व्हाट इज दिस? दैट इज द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम. कौन कौन सी फोर्सेस उसपे एक्ट हो रही हैं? लाइक इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, राइट? सो व्हाट हैपन? अब यू सी द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, ट्रू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, यही हो रहा है, राइट? एंड
कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो उसको मोशन पे लेके आ रही हैं और बैलेंस भी कर रही हैं या अनबैलेंस कर रही हैं। सो इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में हम ये सारी चीजें लर्न करेंगे वन बाय वन। Now, starting with the theory of machine. So, in the starting kinematics of machine, we need to understand the concept of kinematics and dynamics. So, firstly, before discussing हमें kinematics and dynamics, we must have to clear these two things. So, kinematics को क्या कहेंगे आप, कैसे कह सकते हैं kinematics, right? यहाँ पे एक simple define किया है मैंने, right? It's study with the relative motion only, right? Study with the relative motion only, nothing to do with the forces. और सेकेंडली प्योर मैकेनिज्म। तो यहाँ एक बार पहले फर्स्टली डेफिनेशन यू कैन राइट दिस, राइट, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ अ मशीन पार्ट्स ओनली, राइट, एंड नथिंग टू डू विद द फोर्सेस, राइट, एंड इट इज आल्सो नोन एज प्योर मैकेनिज्म और ज्योमेट्री ऑफ मशीन्स। सो काइनेमेटिक्स, हियर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट काइनेमेटिक्स, राइट। तो it's generally discussed, right, it relates with the relative motion of parts, like relative motion कैसे sliding pair, if अगर मैं बुक्स की बात करूंगा, एक बुक्स को दूसरी बुक के ऊपर रख के we can slide easily, like मेरे पास एक डस्टर है, राइट, डस्टर है और मैं बुक यहाँ रख रहा हूँ, राइट, what is that, I think C हो रहा है, ये रहा, right, so what is that, that is a sliding motion behind, that is a relative motion between them, so it's the best example, right। आई थिंक इजीली अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि रिलेटिव मोशन उसके बीच में होना चाहिए, और हमें से रिलेटिव मोशन से मतलब है, राइट, फोर्सेस वहां पे क्या कर रही हैं, कहां से आई हैं, राइट, इसका कंसर्न हमें डायनेमिक्स में होगा, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, राइट। सो व्हाट इज काइनेटिक्स, एक वर्ड है काइनेटिक, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन में, इट डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज, मींस अब जो ये फोर्सेस थी, जो बुक की फोर्स हम देखे थे थ्रू एंड फ्रो मोशन में आ रही है, राइट, सो वो क्या कर रही है, ठीक है, इट डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडी, तो वो वर्ड है काइनेटिक्स, जो कि डायनेमिक्स में डिफाइन में आता है। सो डायनेमिक्स क्या हुआ नाउ, अब काइनेमेटिक्स हमने रीड किया था, तो डायनेमिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन मशीन, राइट। सो डायनेमिक्स की एक बार डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, राइट, तो कैसे इसको आप डिफाइन करेंगे। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ forces acting on machine parts, right, so it is called statics, and the one which treats with the inertia forces, इसको अंडरलाइन कर लेना है, right, only, ठीक है, it comes as काइनेटिक्स, जो हमने ये काइनेटिक्स के ऊपर बात की है, जो कि हमें डायनेमिक्स की डेफिनेशन में जरूर डालनी है, क्योंकि इसमें क्या है, फोर्सेस के साथ कंसर्न कर रहे हैं, और फोर्सेस को कंसर्न कहां पे कर रहे हैं, काइनेटिक्स में, यू कैन इजीली सी देयर। नेक्स्ट वी सी रेजिस्टेंट बॉडीज, रेजिस्टेंट मींस रुकावट, रोकना। सो रेजिस्टेंट बॉडीज के बॉडीज व्हिच डू नॉट सफर एनी डिस्टॉर्शन और चेंज ऑफ देयर शेप बाय एक्टिंग फोर्सेस ऑन देम, राइट। सो रेजिस्टेंट बॉडीज के लिए सिंपल डिफाइन कर सकते हो आप, राइट। तो नोट्स के लिए मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप इजीली इसको कॉपी वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्लाइड्स में ही इस चीज को समझेंगे। इफ एनीबॉडी एनी क्वेरी, राइट, यहाँ पे आप रेज कर सकते हैं हैंड, ठीक है। नेक्स्ट द लिंक अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक का नाम कई है, यहाँ पे मैं देना भूल गया हूँ, राइट। तो लिंक को हम एलिमेंट भी कह सकते हैं और काइनेमेटिक लिंक भी कह सकते हैं, राइट। काइंडली नोट दीज थिंग्स, राइट। So a resistant body or an assemblage of resistant bodies, right, note that point, और एक resistant body or an assemblage of resistant bodies forming the part of machine and having relative motion to other part is called kinematic link और element। जैसे मैं आपको बता रहा था कि लिंक को हम तीन डेफिनेशन से किसी से भी टाइप में आ सकता है, और 3 मार्क्स में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, रेजिस्टेंट बॉडीज क्या है, या फिर लिंक क्या है। यू कैन एक्सप्लेन दिस इजीली। सो एग्जांपल इसकी पिस्टन रॉड, क्रॉस एंड, दैट इज इजीली आप देख सकते हो कि इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अगर मैं बात करूंगा इस डस्टर की, राइट, आई हैव अ डस्टर, तो जब तक ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, इसके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं आता, व्हाट इज दैट, दैट इज योर क्या, दैट इज द एक रेजिस्टेंट बॉडी है ये। और अगर मैं इसको फर्दर किसी से कनेक्ट करूंगा, ठीक है, राइट, so it forms a link, okay, so I hope you understand these things। now basics है कुछ links का कि ये binary link क्या होता है, ternary है और quaternary क्या है। binary means two ends of a pair, तो अगर आप लिखना चाहते हैं you can easily write there binary link, okay। तो binary link, so it having two ends of a turning pair means आप
अगर आप यहाँ देख रहे हैं, एनिमेशन यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट की। सो बाइनरी लिंक, राइट, ये टू एंड्स ऑफ अ पेयर, यहाँ पे आपको टू एरोज दिख रहे हैं, दैट इज टू एंड्स ऑफ अ पेयर है, ठीक है। एंड टर्नरी दैट इज अ थ्री एंड ऑफ टर्निंग पेयर, जिसके कोई तीन एंड होंगे, और क्वाटरनरी के लिए फोर एंड्स। यहाँ पे एक स्केल बनाया है 1 2 3 4, राइट। ओके, सो नेक्स्ट, machine and structure. It's again very important we know about these things कि machine और structure में हमारे पास difference क्या है। So what is machine? It is meant for transmitting useful energy. ये starting में हमने discuss किया था कि machine है क्या, क्या हम इसको utilization कैसे करेंगे। So it meant for generally useful energy, transmitting useful one place to another. और साथ में सेकंड थिंग दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेटिव मोशन जो है इसके बीच में होना चाहिए, अदरवाइज नो यूसेज। और अगर ये चीज नहीं है तो है क्या, दैट इज स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं कि किसी कोई बॉडी खड़ी है और कोई वर्कआउट नहीं कर रहा है, दैट इज स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि नॉट मेंट फॉर ट्रांसमिटिंग एनर्जी और नॉट रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, ठीक है। अगेन हम इसकी सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं डस्टर की। देखिए, अगर तो मैं इससे कोई वर्कआउट कर रहा हूँ, इसमें कुछ कनेक्टिविटी करके, ठीक है, स्लाइडिंग मोशन पे अगर मैं बुक के साथ लेके आता हूँ इसको, तो दैट इज कोई मशीन, इससे मेरे को फर्दर कोई वर्क मिल रहा है, तो दैट इज सम यूजफुल वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और इसको हम मशीन कहेंगे। बट इफ आई सेड टू दिस इज अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है जो कि वर्कआउट नहीं कर रहा है, वैसे के वैसे ही खड़ा है। सो इसको डोमेन को नोट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे यू कैन सी अ सिलेंडर, पिस्टन, स्मॉल एंड बेरिंग कनेक्टिंग रोड। यहाँ पे कुछ मशीन टोटल मशीन है और स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो ये आपके लिए टास्क रहेगा स्टूडेंट्स, काइंडली नोट दिस कि मुझे यहाँ पे आपने मशीन और जो है स्ट्रक्चर का पार्ट बताना है कि क्या क्या है। सो आई थिंक आई होप इट्स वेरी इजी टू यू, राइट। सो नेक्स्ट एक टॉपिक है छोटा सा, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैकेनिज्म, राइट। यहाँ पे प्लेनर और स्पेटल मैकेनिज्म। प्लेनर के लिए हम ज्यादा यहाँ पे जोर नहीं डालेंगे इस स्लाइड में। प्लेनर मैकेनिज्म दैट डील्स विद जनरली 2D, लाइक ए टू डायमेंशनल, राइट, ठीक है, जिसमें क्या आएगा कि प्लेनर मैकेनिज्म रिलेटिव मोशन तो होगा इन द रिजिड बॉडीज, बट आर इन वन प्लेन, और एक ही प्लेन में होगा, दैट इज टू डायमेंशनल प्लेन्स, ठीक है। और इफ देयर इज एनी रिलेटिव मोशन दैट इज नॉट इन द सेम प्लेन, यानी कि अब थर्ड भी आएगा एक्स वाई जेड, जिसे हम कह रहे हैं तो पैरेलल plane 3D. The mechanism is also called spiral mechanism. So other words in the planar mechanisms are essentially two-dimensional, while spiral mechanisms are three-dimensional. So you see the figure, you can tell me this is the mechanism or structure, right? इसके बारे में थोड़ा डिस्कस मुझे बता सकते हैं कि ये मैकेनिज्म है कि स्ट्रक्चर है, राइट। सो ये एक मैकेनिज्म है, देख सकते हैं ट्रू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, स्लाइडर, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, कनेक्टिंग रोड के थ्रू हमारा ये कनेक्टेड है, दो लिंक्स हैं यहाँ पे, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो मूवमेंट कर रहे हैं उनको साथ साथ घूमना पड़ रहा है, राइट। सो ये जो रोटेटिंग देख रहे हैं क्रैंक के साथ, ठीक है, रोटरी मोशन है, यहाँ से आप कोई भी एनर्जी जो है फर्दर यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो शाफ्ट को रोटेट करें, जेनसेट को रोटेट करें, एयर पंप्स के लिए है, न्यूमेटिक, कहीं एनीथिंग एल्स यू कैन डू, ठीक है। अगर हम इससे ऑपोजिट में व्हीकल्स भी ड्राइव कर सकते हैं, राइट। So again, that is very important in the topic kinematic pair. Kinematic pair. So write down for this. Firstly, any two links which are connected together in such a way, right, that relative motion is completely or successfully constrained, constitutes a kinematic pair. Constitutes a kinematic pair, right? दोबारा देखिए, two links, any two links which are connected in such a way, ठीक है, that relative motion is completely or successfully constrained, constitute which is known as kinematic pair. Now examples, बहुत सारे examples हैं इसकी kinematic pair की, आपने अभी देखी ही है पीछे, right? That is the example for this. So crank, ठीक है, and connecting rod, piston and cylinder, that are the best example for this. तो ये डायग्राम है एक साथ में जहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी सी रेयर है, इसमें है क्या स्फेरिकल, तो मैं अलग से समझाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दिस, बट यू सी स्फेरिकल, प्लेन, सिलेंड्रिकल, स्क्रू टाइप, राइट, ये मैं डिस्कस करूंगा आगे, राइट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, बार बार पूछा जा रहा है पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के एग्जाम्स में, लास्ट ईयर जब मर्जी उठा लो, इसको नहीं छोड़ेगा ये,
इसको क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, राइट। सो टाइप्स, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। सो डिपेंडिंग अपॉन दी, सबसे पहले बात करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी रिलेटिव मोशन, राइट। तो उसमें कौन कौन से आएंगे? स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर, जिनकी हम बात कर रहे थे। तो स्लाइडिंग पेयर के आई थिंक एग्जांपल मेरे पास है, आप समझ भी चुके होंगे। टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर, ये आपको मैं दिखाऊंगा, राइट। So types of link there, link, rigid, flexible, fluid, right? So rigid link, rigid की हम पहले बात कर चुके हैं, that is fixed link, right? कि कहीं move out नहीं करता है ये। A rigid link which one does not undergo any deformation, ठीक है, while transmitting motion. So strictly speaking, rigid link do not exist, right? But एक्चुअली पॉसिबल है, अगर इसके बगैर तो कोई काम ही नहीं होगा। कैसे? कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन, इट इज नॉट दैट कैन बी कंसीडर्ड बाय रिजिड लिंक्स, राइट। So flexible link, a flexible link is one which is partially deformed in a manner not to affect the transmission of motion, like belts, ropes, chains. Like easily you see belts देख सकते हैं, आप ropes देख सकते हैं, chains के लिए भी देख सकते हैं। तो भी फ्लेक्सिबल लिंक है, एक जगह से दूसरी जगह हम मोशन ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब वो क्या चीजें हैं, बेल्ट के बारे में हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा उसमें डिस्कस करेंगे। चेन्स भी उसी में है, रोप्स में इसकी एफिशिएंसी भी चेक करेंगे। बट ये आता है किसमें, अपने ये नोट करना है, राइट। दैट इज द थिंग इज फ्लेक्सिबल लिंक। नेक्स्ट इज फ्लूइड लिंक। सो फ्लूइड लिंक, व्हाट इज फ्लूइड लिंक? लास्ट टाइम हमने हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स रीड किया था, तो अच्छे से फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया। तो जो भी हमारा हाइड्रोलिक प्रेस है, ठीक है, या हाइड्रोलिक जैक है, hydraulic ram है, that is direct link with the fluid link. So fluid link is one which form having a fluid, right? So motion जो transmit होगा by the pressure, right? Pascal's law यहाँ पे आप apply कर सकते हैं, brakes का देख सकते हैं examples, okay, clear this thing. तो types of kinematic pair, right? इसका टाइप spherical है, इसमें spherical pair है, ठीक है, turning pair है, sliding pair है, ठीक है, sliding pair है, rotating भी इसमें utilize हो सकता है, ये भी sliding pair है, right? तो यहाँ पे देखेंगे हम डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिकल अरेंजमेंट्स, राइट, कि हमारे पास आगे कौन कौन सी जो है वो मैकेनिकल अरेंजमेंट्स हैं, राइट। कौन कौन सी हैं इसमें? सबसे पहले क्लोज्ड पेयर, पहले ओपन पेयर है। वो कौन कौन सा? क्लोज्ड पेयर होता क्या है? द टू एलिमेंट्स पेयर हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली सो एज टू हैव सक्सेसफुली कॉन्स्ट्रेंट। सक्सेसफुली कॉन्स्ट्रेंट मींस जो कहीं भी वहां उसकी मूवमेंट होगी बट एक डायरेक्शन में होगी। जैसे स्लाइडिंग पेयर है, मैंने स्लाइडिंग पेयर आपको दिखाया था, अपने कारपेंटरी शॉप में भी ये डायग्राम बनाया होगा। ये स्लाइडिंग पेयर यू सी ये मूव नहीं कर रहा है, आई डोंट नो, क्लिप आर्ट तो मैंने लगाया था, ओके। सो ओपन पेयर, राइट। सो ओपन पेयर व्हेन टू लिंक्स आर नॉट हेल्ड, राइट, व्हेन टू लिंक्स आर नॉट हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली दे कंस्टिट्यूट्स अनक्लोज्ड पेयर। ओके, यू सी द बेल्ट इज ड्रिवन देयर, टाइट साइड, लेग साइड, सब पढ़ेंगे हम आगे। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ओपन पेयर। ट्रांसमिट तो मोशन कर ही रही है, ये ऐसा नहीं है कि ट्रांसमिट नहीं कर रही है, ठीक है। सो दैट इज ओपन पेयर एग्जांपल। और क्लोज पेयर के लिए आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट इज स्लाइडिंग पेयर, राइट। लोअर पेयर एंड हायर पेयर, राइट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट था, लोअर पेयर एंड सॉरी आपका क्लोज पेयर एंड ओपन पेयर, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिकल अरेंजमेंट, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट, लोअर पेयर और हायर पेयर। तो लिखेंगे इसके लिए थोड़ा सा लोअर पेयर के लिए, व्हेन टू एलिमेंट्स, लोअर के लिए व्हेन टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर हैविंग अ सरफेस कॉन्टैक्ट, राइट, व्हेन रिलेटिव मोशन टेक प्लेस, when relative motion take place and the surface of one element slides over the surface of other, the pair is formed as known as lower pair. It will be seen the sliding pair, turning pair और screw pair easily. Screw pairs, right? Screw pair देखिए यहाँ से मेरे पास एग्जांपल आ गई है screw pair के लिए, right? तो ये चीज, what is that? This the thing you see. So अपने पेन को भी आप देख सकते हो, यहाँ पे पेन को घुमा के, दैट इज अ स्क्रू पेयर, ठीक है। स्क्रू सबने देखी है, नट एंड बोल्ट्स आपने पढ़े होंगे, तो वहां से ये चीज के बारे में बात कर रहा है। तो लोअर पेयर क्या है कि जब टू एलिमेंट्स ऑफ पेयर है सरफेस कॉन्टैक्ट लगे, मेन हमने जो रीड करना है सरफेस कॉन्टैक्ट, राइट। हायर पेयर व्हेन टू एलिमेंट्स ऑफ पेयर हैविंग लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट, इस इसको रिमाइंड करेंगे। तो मोशन बिटवीन देम द टू एलिमेंट्स इज पार्शियली टर्निंग एंड पार्शियली स्लाइडिंग, कुछ टर्निंग होगा कुछ स्लाइडिंग होगा। बेयरिंग देखा है सबने, ठीक है। बेयरिंग आपके स्कूटर में लगा होता है, बाइक में है, साइकिल पे है, वो इजिली सही देयर, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है।
Now, types of constraint motions. This is very important. This is very important, right? तो ये जनरली पूछ लेता है हमारे से कि भी हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं. हमारे पास 3 टाइप्स के कॉन्स्टेंट्स हैं. राइट डाउन. नंबर 1 इनकम्प्लीट. ठीक है, यहाँ पे कम्प्लीटली लिखा, नो इशू. कम्प्लीटली, इनकम्प्लीटली कॉन्स्टेंट और सक्सेसफुली कॉन्स्टेंट. सो कम्प्लीटली कॉन्स्टेंट. कम्प्लीटली कॉन्स्टेंट मीन्स व्हेन द मोशन बिटवीन अ पेयर limited to a definite direction. ये याद रखना, limited to a definite direction, right? Irrespective of the direction of force applied, the motion is said to be a completely constrained motion, right? The motion of a scalar, example देखो, scalar एक ही जगह पे हम motion ले रहे हैं, limited है एक ही direction में, that is a completely constraint. So incompletely कौन सा होगा? अब incompletely example दे सकते हैं, round hole है आपके पास, एक बार है यहाँ पे. When the motion between a pair can take place in more than one direction, यानी कि रोटेट भी हो रहा होगा ये साइड बाय साइड, तो मोशन इज कॉल्ड इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन. एक डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है. द चेंज इन द डायरेक्शन इंप्लाइज फोर्स में अल्टर. जैसे फोर्स लगेगी उसके अकॉर्डिंगली मूव करेगा. इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल शार्प रोटेटिंग इन अ बेयरिंग, राइट? सक्सेसफुली कांस्टेंट. सो when the motion between the elements forming the pair in such a way that constant motion is not completely by itself, like कुछ लोड एक्स्ट्रा पड़ रहा है हमारे पास. कैसे? आपने फ्लोर मिल देखी होंगी, ठीक है, तो वो ओल्ड फ्लोर मिल में ये बेस्ट एग्जांपल है. ऊपर से लोड पड़ रहा होता है, फुट स्टेप बेयरिंग आपने देखा होगा, नीचे हमारा बेयरिंग होता है, शार्प लोड ऊपर से पड़ रहा है, शार्प रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे दो मोशंस अब आ रहे हैं, एक तो रोटेट कर रहा है, ऊपर से लोड भी आ रहा है. सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, द मोशन ऑफ एन आईसी इंजन वॉल्व्स, दैट इज द एग्जांपल. और जो अगर आपने इसको एक्चुअल में देखना है वर्कआउट करते हुए, यू कैन इजीली गो टू द फ्लोर मिल नियर बाय, जो आटा चक्की वहां जा सकते हैं, वहां पे आप इसको इजीली देख सकते हैं. उससे पूछ सकते हैं कि भैया फुट स्टेप बेयरिंग, उसको नहीं पता होगा बट यू कैन सी कि फुट स्टेप बेयरिंग कहाँ पे, ये टास्क लगा सकते हो वहां पे. नाउ नेक्स्ट, काइनेमेटिक चेन. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, काइनेमेटिक चेन. सो इसके लिए सबसे लिखेंगे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक लिंक इन विच each link forms a part of two kinematic pair and relative motion of each link is completely or successfully, ये word को underline कर लेना, completely or successfully constraint is known as kinematic chain. So हम यहाँ पे again क्या कह रहे हैं, देखें, पहले लिख तो लिया है. When the kinematic pairs are coupled in such a way, दो kinematic pairs हमने पढ़े हैं. आ जाओ वापिस आ जाओ आप. हायर पेयर लोअर पेयर उसके टाइप्स थे, हमने काइनेमेटिक पेयर पढ़ा है. काइनेमेटिक पेयर क्या है? टू लिंक्स इज कनेक्टेड इन सच अ वे दैट रिलेटिव मोशन इज कंप्लीटली और सक्सेसफुली कांस्टेंट. दो लिंक ऐसे कनेक्टेड इस तरह से होंगे जो कि रिलेटिव मोशन होगा, जहां वो कंप्लीटली होगा, जहां सक्सेसफुली कांस्टेंट होगा, राइट? और बट यहाँ पे हम चीज एक और ऐड कर रहे हैं, when the kinematic pairs, अब वो पेयर की बात कर रहे हैं, coupled in such a way, यानी कि दो kinematic पेयर हो जाएंगे, link in such a way that the last link is joined with the first link. इस चीज के बारे में ध्यान देंगे, last link is joined with the, right? मैं यहाँ पे एक डायग्राम से भी आपको समझा सकता हूँ. I think you see this. Is it visible? So what is that? Link 1, link 2, link 3 and link 4. जब फर्स्ट लिंक, देखिए दोबारा देखिए डेफिनेशन में क्या हो रहा है, the last link is joined to the first link. Last हमारा 4 था और हमने फर्स्ट के साथ ज्वाइन किया, so what will happen? It transmits some definite motion, right? ठीक है, it transmits some definite motion और साथ में क्या होगा? Relative motion between them. So that is formed a kinematic chain. So in other words, kinematic chain may be defined as the combination of kinematic pair joined in such a way the link forms a part of two pairs and the relative motion between them. इस चीज को याद रखना. और successfully constant word डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पे लिंक कौन कौन से हुए, जैसे 1 2 3. ये 1 मिनट आई एम शोइंग यू कि लिंक अगर डायग्राम आप देख रहे हैं, आई एम शोइंग द स्पॉटलाइट.
So link 1, link 2, link 3, link 4 and link 5. So अब E का कनेक्शन A के साथ हुआ, that forms a kinematic pair, right? जो अब इसके करके कोई ना कोई जो है हमारे पास kinematic pair जो है वो आएगा, और वो पेयर को हम जो है क्या कहेंगे that, और साथ में उसका रिलेटिव मोशन भी होना चाहिए, लेकिन कंडीशन है और सक्सेसफुली कॉन्स्टेंट भी होना चाहिए, right? If you have any doubt about kinematic chain, you can discuss me. ठीक है, any query, raise your hands. So thank you students. We continue with your next lecture. उसमें हम रीड करेंगे आपका कि ये काइनेमेटिक चेन बनी है कि नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, लॉग चेन है या अनकॉन्स्टेंट है, या डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे, गर्बलर्स इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, इन्वर्जन आ जाएंगे. ओके, सो थैंक्स फॉर टुडे. If you have any query, comment box में you can mention this, right?